हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग? आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीए प्रथम मगजवाला। आ, आप लोगों को मैं बताऊं, मैं प्रथम भैया से मिला था। सीए स्टूडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी इंदौर में नवंबर के मंथ में। और प्रथम भैया ने पेपर प्रेजेंट किया था। और मैं उस टाइम पे उनसे मिला था और मेरी जब से इच्छा थी कि प्रथम भैया एक बार सीए बन जाए, उनके साथ पॉडकास्ट तो करनी है। और फिर पता चला प्रथम भैया भी यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं और सीए क्लियर हुआ, उनका रिजल्ट रिएक्शन आया, तब से मन में था कि आपके साथ पॉडकास्ट करूंगा। और आज फाइनली मेरे मन की चीजें सच होती नजर आ रही हैं। सबसे पहले तो थैंक थैंक यू सो मच। Thank you for you, Yash, because when we had met at ICS Students National Conference in Indore, we had interacted just for 10-15 minutes. But you had sent the YouTube link, and then from then I am following you on Instagram, and I am seeing your journey, and you cleared your CA inter recently, and that was great. I saw that video of yours that you cleared it, and congrats for that too. And yeah, it was wonderful seeing you pass and the whole journey. थैंक यू सो मच भैया। सबसे पहले मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा कि आपका चाइल्डहुड कैसा था। मतलब आप एक इंट्रोवर्ट बच्चे थे या बहुत ही ज्यादा मस्ती करने वाले बच्चे थे? कैसे थे आप? So basically, from childhood, if I take you, till eighth, I was very introverted. But from eighth standard, the public speaking part started playing out. I liked going on stages and I liked speaking on various topics. And from then, my studies part also grew that I want to have deep focus. So I wasn't a topper, but I remained at ninth position or 10th position or 12th position. I wasn't in top 10 on top 5, but somewhere around 11, 12th position, I would be playing around there. So not a hopper, but not a that musty wala guy. I was a sports guy, if you say. I would be on field the whole day, playing cricket, kho football. I would be on the field only. तो भैया, एक जो सीए कोर्स है ना, उसकी एक मतलब लोगों का मानना है सीए सिर्फ वही बच्चे करते हैं जो एक टॉपर होते हैं और जो बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने वाले होते हैं। आपने बोला स्पोर्ट्स वाले बच्चे बहुत कम होते हैं जो स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, बाकी सब एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, वो सीए करें। देन व्हाई यू चूज सीए? For me, it was like in 10th, no, 8th or ninth, all my friends were going into LN and Akash, and they were, running into that race of, IIT, NEET. And at that point, I stopped and asked myself that, do I want to go in that race, in that IIT and NEET race? And that's when I got my answer because I don't like physics, I don't like chemistry, and biology was bouncer to me. So I wanted to do something great. And if not IIT and doctor, then the third best part that is there in this whole journey. And if I choose commerce, it was CA. So I chose the CA that I want to do the best. And that's how I was like, chalo, let's do the CA. From 10th, I was very sure that I want to do the CA because my mama has also done CA and my Jiju is also doing CA. So I was like sure that I have to go in this path. तो भैया, आफ्टर चूजिंग सीए सब बच्चों की लाइफ में एक चीज रहती है, एक कंफ्यूजन रहती है कि ऑनलाइन कोचिंग करें, ऑफलाइन कोचिंग करें। क्या ज्यादा सही रहेगा, कन्वीनियंट रहेगा? आपका इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू और आपने क्या चूज किया था? So basically, if I say Surat is considered as a CA hub of Gujarat. Matlab, if I say in this attempt, if November 24, out of 180 students, 120 cleared in first attempt. That is 67% passing ratio of first attempt. And that was because of the offline coaching. We were all going to the classes from 7 to 11, 11:30 and then going to the articleship. मतलब वो routine एकदम set हो गया था. 7 to 10:30 we are going to class. 11, 11:30 we would go to articleship and then 6 home and then self study type. So every morning for 2 to 2.5 years we were going to offline classes, and that's how the whole ecosystem had been formed, that we all are friends and we all cleared. मतलब जो भी क्लास में दिखता था वो सबने क्लियर कर दिया. दैट वाज द सिनारियो कि जो भी क्लास में आता था वो सबने क्लियर कर दिया. November 24 was one of the toughest attempt, but then also having a 67% passing ratio in that attempt, it was like we were also shocked that online coaching में जो ये सब होता रहता है, but the people we had created on that platform in that ecosystem, it was like one of the best. अ, मेरे हिसाब से ऑफलाइन कोचिंग में कंसिस्टेंसी बन जाती है। ऑनलाइन में आप लेक्चर देख रहे हो, नहीं देख रहे हो, सुबह पता चले आप आधी नींद में लेक्चर देख रहे हो, कुछ दिमाग में नहीं जा रहा है और स्किप कर रहे हो। लेकिन ऑफलाइन कोचिंग में एटलीस्ट
कंसिस्टेंसी के साथ आप लेक्चर पूरे खत्म करते हो, अच्छे से पढ़ते हो, एक अंदर से एनर्जी रहती है, आप सुबह सुबह जल्दी उठ के नहा के जाते हो। मेरे हिसाब से ऑफलाइन कोचिंग बेस्ट है अगर जा सकते हो आप तो। या बिकॉज इफ आई से, मैं तो कई बार शायद क्लास में जाके थोड़ा आधा घंटा सो भी गया था, but still then something is going in the ears rather than nothing going, something is going in the ears, and that's how the whole, 2 and 2.5 years कहाँ निकल गए पता ही नहीं चला, सही बताओ तो, क्योंकि हर रोज क्लास जाना ही है, दैट्स द मैंडेटरी थिंग। उसमें वो करना ही नहीं है कि भाई क्या है क्या नहीं है, क्लास खोलना है कुछ नहीं, जाना है हर रोज सुबह जाके क्लासेस अटेंड करना है। एंड द वे, it's a Ravi Chowchare Institute, that is the offline classes name, and the way Ravi sir has, designed the whole syllabus, he doesn't let you study like, मतलब एफ आर तो एफ आर, 5 महीने एफ आर ही चलता रहा है, वैसा नहीं करते। सो ही जस्ट ब्रेक्स इनटू सम ट्रेंचेस। एक फेज खत्म हुआ, उसके बाद ऑडिट शुरू कर दिया, वो थोड़ा खत्म हुआ, उसके बाद एएफएम। सो ही, ब्रोक द सिलेबस इन सच ट्रेंचेस दैट, एंड इन जनवरी और फेब, मतलब हमारा नवंबर 24 था, सो जनवरी या फेब 24 में तो हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो गया था, एंड देन वी वर जस्ट लेफ्ट फॉर सेल्फ स्टडी। एंड दैट वाज द बेसिक थिंग कि भाई वो एक जो पूरा ऑफलाइन क्लासेस का जो मजा मिल गया था, देन वी कैन वॉच रिवीजन क्लासेस, वो तो थोड़ा शायद रिवाइज करने के लिए चाहिए, बट द मेजर जो बेस होता है जो ऑफलाइन क्लासेस में जो बन जाता है, दैट्स ट्रमेंडस। एंड थैंक्स टू ऑफलाइन क्लासेस, आई हैव गॉट माय पार्टनर्स फ्रॉम देयर ओनली। मतलब अगर वो नहीं होता ऑफलाइन क्लासेस, तो शायद मैं मेरे पार्टनर्स को भी नहीं मिलता। एंड इट वाज लाइक दैट। सो वन ऑफ माय पार्टनर्स इज फ्रॉम राजकोट, he is Rajkot topper. He had come for offline classes specifically to study here, and he scored AR 33 in this environment. वाह। And that's how we all, gelled up. And I say offline classes is best. There's nothing more saying. Revision classes देख लो बाद में, but if you get a chance to go into offline, take that. तो ये तो बात हो गई क्लासेस की। हाउ वाज योर आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस एंड एट विच पॉइंट ऑफ टाइम आपने सोचा कि प्रैक्टिस में अपना हाथ जमाएंगे? So basically, I was in a mid-sized firm, मतलब वो, it's a nice firm। मतलब यहाँ पे 30-35 आर्टिकल्स भी होते, 30-35 आर्टिकल्स थे हमारे साथ। एंड बेसिकली मेरा प्रैक्टिस में आने का जो ऐसा शॉर्ट शॉर्ट हुआ कि मैं सबसे लास्ट था कि भाई मैं मुझे प्रैक्टिस में आना है, बिकॉज it's like the whole community is Kathiawadi. So we all three are, the other partners are Kathiawadi and I am. So it's like Gujarati. So they all were very sure that we have to do the business. We have to do the practice. I was little bit like job करनी है या फिर practice में जाओ, corporates में जाओ. But then they told me that, do you want to be a small part of a big corporation or a big part of a small firm? And that's when I decided that let's create it, let's get into it, and हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो बना लेंगे। And that's how we all four went in the practice. पता है यार, आपका रिजल्ट आया, मैंने रिजल्ट रिएक्शन देखा, हम सब ने आपका रिजल्ट रिएक्शन देखा। और यकीन मानो आप, मैं बहुत खुश था आपका रिजल्ट रिएक्शन देखने के बाद, क्योंकि जो इमोशंस थे वो मैं फील कर सकता था। आपका रिजल्ट आपने बताया, आपके 303 मार्क्स थे 600 में से। देन कैसा उस टाइम पे आपको फील हुआ? क्योंकि कई सारे ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो कैमरे में कैप्चर नहीं हो पाते हैं, बट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्ट, मतलब बहुत ही ज्यादा प्रीसियस हो, बहुत ही ज्यादा मेमोरेबल हो, जो आप शेयर करना चाहो हमारे साथ में। सो बेसिकली इट वाज लाइक, हमारा रिजल्ट है ना रात को 10:30-11 बजे आया था। इनिशियली इट वाज लाइक कि भाई आ जाएगा, 5-6 बजे आ जाएगा। एंड देन इट जस्ट स्टार्टेड डीलिंग डीलिंग डीलिंग। एंड जो वो एंग्जाइटी लेवल जो बिल्टअप हो गया था, इट वाज लाइक ट्रेमेंडस। मतलब हाथ भी, रिजल्ट टाइप, मतलब जो रोल नंबर टाइप कर रहे थे तब हाथ भी कांप रहे थे कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। बट द आई वांटेड टू कैप्चर द रिजल्ट। मतलब मुझे पता था कि भाई अगर पास भी हुआ फेल भी हुआ मुझे नहीं पता, जो भी होगा आई वांटेड टू कैप्चर। सो मेरे फैमिली वालों को भी कुछ नहीं पता था कि भाई मैंने वहां पे कैमरा रखा है, चालू है। एंड इट वाज जस्ट द होल रॉ इमोशंस दैट केम आउट, दैट आई एम, मतलब आई एम थोड़ा, स्टक स्टक बिटवीन वेदर आई बी हैप्पी वेदर आई बी क्राइंग। सो मैं वो इस इमोशनल टशन में आई वॉज जस्ट गेटिंग थ्रू, मतलब मैं रोया ही नहीं था। बट वेन माई मॉम हग्ड मी, एंड दैट वॉज द टाइम दैट इट वॉज ऑल जस्ट, द होल टीयर्स केम आउट एंड आई वॉज लाइक चलो कोई नहीं, जो होना था वो हो गया। एंड 303, इट वॉज लाइक द, जब देखा था तो सक्सेसफुल सक्सेसफुल देखते हैं। इफ यू सी माई रिजल्ट रिएक्शन ऑल्सो, सक्सेसफुल सक्सेसफुल ही आता है। एंड देन व्हेन यू सी के भाई दूसरों को मार्क्स क्या है ये वो, एंड तब थोड़ा ऐसा होगा कि यार 303, मैंने भी इतनी तो मेहनत की थी, सबने, सबके सब जितनी मेहनत की थी। एंड दैट्स व्हेन माय मॉम टोल्ड दैट बेटा 3 मार्क्स से ही बचा है, एंड डोंट लेट दिस 3 मार्क्स
demean you. It's your luck, it's God's grace that you got the 3 marks. And that's when I was like, okay, चलो ठीक है, सीए तो बन गया ना, the other things are just temporary, वो तो ठीक है, आज पूछेंगे कल नहीं पूछेंगे. So that was how that I felt, because it was just tremendous happiness over there. अ, कम मार्क्स से पास होने की और कम मार्क्स की वैल्यू सिर्फ वही बता सकता है जो कम मार्क्स से फेल हुआ है. आपको पता है मेरे ना एक अटेम्प्ट की बात है, नवंबर 22 अटेम्प्ट था. अकाउंट्स एग्जाम्सन, लॉ 54, कॉस्टिंग एग्जाम्सन, 4 सब्जेक्ट होते थे ग्रुप में. और मेरे टेक्स्ट में 32 आए थे, मैं 197 कुछ अप्रोक्स मेरे मार्क्स आए थे. सब कुछ मार्क्स से ऐसा हो गया था जब मेरे को लगता था काश एक टाइम पे थोड़ी मेहनत करी होती. और उस टाइम पे ये नहीं आया कि मेरे को इतने ज्यादा मार्क्स मिले, उस टाइम पे सिर्फ लगता है कि एग्जैक्ट 200 चाहिए थे, काम हो जाता. Yeah. तो फिर So तो भैया. हम्म. सो बेसिकली आई जस्ट वांट टू ऐड वन मोर पॉइंट. सो हम जहाँ पे क्लासेस जाते थे, रवि सर वो हर बार यही बोलते थे, पूरा इंडिया या तो 10% मार्क्स से पास होगा या तो 10% मार्क्स से फेल होगा. इट्स जस्ट दैट वन बैरियर, 10% का ही जो बैरियर है ना, वही में सब पास होते हैं या फेल होते हैं, मेजोरिटी 90% ऑफ इंडिया. एंड दैट हैव बीन कैप्ट इन माई अवर माइंड, लाइक दो हम 5 साल से वही उन्हीं के कोचिंग में जा रहे हैं. सो वो एक जो सिस्टम थी ना कि भाई 10% मार्क्स, जो 10% एक्स्ट्रा मेहनत करनी है वही करनी है, बाकी तुम 90% तक तो मेहनत कर ही लोगे, सब कर लेंगे. दैट 10% जो पुश करना है ना वही करना है, बाकी तो तुम क्लियर कर ही लोगे. सो दैट इंस्टिल्ड इन अस ऑल. यही बाकी स्टूडेंट्स और वो एक्स्ट्रा मेहनत करने वालों में अंतर है कि 90% मेहनत तो सभी कर रहे हैं, वो 10% एक्स्ट्रा करोगे तो वो 10% रिजल्ट में आप आ जाओगे. या. प्रथम भैया, अभी ना रिसेंटली एक नोटिफिकेशन आया कि फाइनल के अटेम्प्ट्स भी अब 3 बार होंगे. प्लस पिछले कुछ टाइम से सीए फाइनल का रिजल्ट भी काफी अच्छा आ रहा है. तो आपको नहीं लगता कि रिजल्ट इतना अच्छा आ रहा है, इतने सीएस बन रहे हैं, तो ये थोड़ा सीए की वैल्यू डिग्रेड हो रही है? क्योंकि सीए फेमस था क्योंकि उसके कम पास परसेंटेज की वजह से. जैसे जेई के वो साइंस के कोर्स में जेई है, नीट है, आर्ट्स में यूपीएससी है, ऐसा कॉमर्स में सीए वाला था कि कुछ लिमिटेड ही पास होते हैं. इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आई से इंस्टीट्यूट डजंट पास एनीवन लाइक दिस. इट विल पास ओनली दो स्टूडेंट्स दैट आर रेडी फॉर दैट. आपको लगेगा कि वो पास करेंगे, इतने ज्यादा सीएस निकालेंगे. इफ यू सी ऑन एन एवरेज शायद 25,000 to 30,000, 20 से 25 हजार सीएस हर साल निकलते हैं. एंड दे विल मेंटेन दैट स्टैंडर्ड ओवर द फुल ईयर. 3 अटेम्प्ट्स के वो 20-25 थाउजेंड ही होंगे. इफ वी सी द रिजल्ट्स, वो वही निकलेंगे. दे वोंट डिग्रेड दैट स्टैंडर्ड दैट दे जस्ट पास ऑल द वंस. बट वही है कि 20-25 थाउजेंड वुड बी आई गेस द स्टैंडर्ड दैट दे विल मेंटेन. एंड दैट्स माई टेक ऑन दैट, दैट इट्स गुड, बट थोड़ा टाइम कम रह जाएगा. बिकॉज इफ समवन फेल्स वन अटेम्प्ट एंड देन रिजल्ट कम्स एंड देन दैट साइकिल, मतलब वो थोड़ा टाइम कम रहेगा. बट द इंस्टीट्यूट पार्ट आई से दे वुड बी स्टैंडर्डाइज्ड ओवर होल थिंग, दैट ओनली 20-25 थाउजेंड स्टूडेंट्स जो है वही निकले. आई गेस दैट्स माई आंसर. मतलब भैया, आपने बताया कि आप पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत करते थे, मतलब कोई भी एक्टिविटीज होते थे, आप कॉन्फ्रेंस में भी आए इंदौर में. तो जो सारे बच्चे हैं जो सीए कर रहे हैं, वो साइड में अपना पैशन रखते हैं. जैसे आप पोइट, मैंने आपकी बायो देखी थी, आप पोइट्री भी आपको अच्छी लगती है, आप राइटर भी हो, आप रीड मतलब बुक्स वगैरह भी काफी पढ़ते हो. कैसे अपने पैशन को और पढ़ाई को साथ में मैनेज करें? बिलीव पढ़ाई फर्स्ट है, पैशन जब भी टाइम मिले ना पैशन फॉलो करते रहो. एक गोल होता है कि भाई सीए बन जाए, एक बार सीए बन जाए. मेरा भी वही था. मैंने कॉन्फ्रेंस, आप बोलोगे मानोगे नहीं, मैंने कॉन्फ्रेंसेस इतने डिले किए ना. मैंने सीए एग्जाम्स दी ना, उसके बाद मैंने कॉन्फ्रेंस के लिए अप्लाई किया था. आई वॉज लाइक मुझे पहले जो भी है सब पढ़ाई कर लेनी है, बाद में मैं एंजॉय करूंगा, मुझे वो नहीं है. बट आई वॉज लाइक कि भाई पहले सब पढ़ाई कर लो, फिर जो भी है एंजॉय करने का टाइम मिलेगा. नाउ आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मतलब मैं 30-30 ओवर के भी मैच खेलने चला जाता हूँ. सो जब वो खत्म हो जाएगा ना, देन यू विल रियलाइज कि हाँ भाई वो टाइम निकल गया. नाउ यू कैन एक्सप्लोर वॉट एवर यू वॉन्ट. सो मैं बेसिकली वही मानता हूँ कि भाई ऐसे कोई पैशन है कि भाई शायद सिंगिंग है या फिर कुछ डांसिंग है या फिर रीडिंग है, जो मतलब इतना सारा टाइम नहीं लेंगे, या फिर 30-35 मिनट या फिर 1 घंटा, तो वो यू कैन कैरी फॉरवर्ड कि हाँ भाई आई आई ऑल्सो लाइक द रीडिंग. सो मैं रीड करता रहता था. आई ऑलमोस्ट रेड 80-100 बुक्स. वो नंबर तो ठीक है, बट आई लाइक रीडिंग. आई जस्ट वेंट रीडिंग कि मुझे पसंद था. शायद मुझे टेक्स्ट बुक से ज्यादा वो ज्यादा पसंद आता था, कि भाई उसमें ज्यादा मजा आती थी. एंड वो मैं पढ़ता रहता था. एंड दैट्स व्हाट नॉट समवन वाज सेइंग कि भाई ये तू पढ़ी, ये अपना सीए का ही पढ़ एंड वो ही पढ़. आई वाज लाइक हाँ भाई मुझे पढ़ना है, मुझे पता है सीए का मैं पढ़ लूंगा.
बट आई वॉन्ट टू फॉलो माई पैशन एंड आई फॉलोड दैट पैशन के भाई थ्रू आउट मुझे पढ़ना है, सो आई विल रीड नॉवेल्स, आई विल रीड सेल्फ हेल्प बुक्स, आई विल रीड ऑटोबायोग्राफीज, एंड वो चलता रहता है। बट जो मेन फोकस है वो सीए के अलावा एवरीथिंग इज सेकेंडरी, भाई उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है जो भी है। क्या प्रथम भैया, जो मैंने नंबर सुना है वो बिल्कुल सही सुना है, 1800 बुक्स। 80 टू 100 बुक्स, अच्छा, 1800 वही बुक्स। मैं अरे नहीं नहीं नहीं, वही 100 नहीं, 80 टू 100 बुक्स। 80 to 100। 80 टू 100, 100 बुक्स। अच्छा, 80 से 200 की, सॉरी मेरे को कंफ्यूज, मेरे को वही लगा 1800 बुक्स। नहीं 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 हाँ। नहीं, नो 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 नो, 80 टू 100 प्रथम मतलब भैया जैसे सौ आप बुक्स प्रथम भैया जैसे आपने 80 से 200 के बीच में बुक्स पढ़ी हुई हैं, कोई 3 बुक्स जो आप सब बच्चों को सजेस्ट करना चाहो कि वंस इन अ लाइफ टाइम आप ये बुक्स तो पढ़ो, और क्यों पढ़ो? फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट बुक, देखो ये बुक ऐसी है कि भाई वो लाइफ टाइम के साथ रहेगी, वो है भगवत गीता। दैट्स वन ऑफ द बेस्ट बुक। वो सबके साथ रहेगी, बट यू नो भगवत गीता डजंट कम इन योर लाइफ, यू हैव टू गेट रेडी टू अंडरस्टैंड भगवत गीता। वो एक ऐसी बुक है दैट यू विल, यू नो, समटाइम्स यू विल जस्ट डिटैच फ्रॉम इट, समटाइम्स यू विल गेट टू इट। सो वो एक बुक है जो कांस्टेंट रहती है कि भाई मैं भी अभी पूरा नहीं पढ़ पाया, आई एम जस्ट एट सेकेंड अध्याय, बट आई एम लाइक ठीक है जितना पढ़ेगा, हमें कहाँ जल्दी है, हमें कहाँ जल्दी है, पूरी लाइफ है, पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। सो दैट्स वन बुक, भगवद गीता इज द ऑल टाइम फेवरेट। द सेकेंड बुक आई वुड से इट्स एटॉमिक हैबिट्स। एटॉमिक हैबिट्स इज लाइक जो भी है गेम चेंजर बुक है। एंड द थर्ड बुक आई वुड से इट्स एन ऑटोबायोग्राफी, मतलब दो ऑटोबायोग्राफी, इफ यू से के ऑटोबायोग्राफी कौन सी दो ऐसी पढ़नी चाहिए, फर्स्ट इज ऑफ स्टीव जॉब्स एंड सेकेंड इज ऑफ नाइक 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 के ऑटोबायोग्राफी है, शू डॉग बाय फिल नाइट। इट्स द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द होल नाइक, नाइकी की ब्रांड कैसे बनी। सो दिस आर द थ्री बुक्स दैट आई वुड सजेस्ट कि भाई अगर किसी को भी पढ़नी है, एंड इफ यू आर अ बिगिनर, दैट्स द एल्केमिस्ट। द एल्केमिस्ट बुक वो मेरी फर्स्ट बुक थी, शायद मोस्ट ऑफ द रीडर्स की वो फर्स्ट बुक होती है, द एल्केमिस्ट, एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। एकदम सिंपल लैंग्वेज एंड इट्स यू नो बेस्ट सेलर, सबको मोस्टली पता होती है। बट इफ यू आर नॉट नोइंग एंड इफ यू वांट टू स्टार्ट रीडिंग, start with the alchemist. That's one of the best suggestion that someone would get. प्रथम भैया जैसे अभी आपने बोला कि पढ़ाई आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, आप सारी एक्टिविटीज में पार्ट वगैरह भी ले रहे हो तो अ, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसी स्किल्स है, जैसे सीए बनने के बाद भी अगर आप उसको टाइम पे उस चीजों पर ध्यान नहीं दो, तो आपको नॉलेज होते हुए भी आप अपनी स्किल्स लोगों के आगे रख ही नहीं पाओगे। तो कितना जरूरी है कि इन सब चीजों में तो एटलीस्ट पार्ट लेना चाहिए ना, मेरे हिसाब से। पब्लिक स्पीकिंग ऐसे कि जब भी जहां मौका मिले ना तब चले जाओ। बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट पब्लिक स्पीकिंग, मतलब इफ आई से कि हर एक्टिविटी में यू आर टेकिंग पार्ट, इट्स अपॉन यू कि भाई आपको रहना हो देन यू टेक इट। मैं पर्टिकुलरली क्या करता था कि भाई कोई पब्लिक स्पीकिंग का इलोक्यूशन कंपटीशन है, ये जो विकासा या फिर सिकासा की जो हम्म। इलोक्यूशन कंपटीशन होती है, डिबेट होती है, जो जिसमें बोलने का जो होता है, मुझे नहीं था कि भाई मैं जीत जाऊं और मैं रीजनल्स जाऊं या फिर नेशनल्स जाऊं, आई जस्ट वांटेड टू स्पीक आउट। सो मैं वहां पे चला जाता था। आई वोंट बी शाई विद दैट कि भाई मुझे वहां पे भी पढ़ना है नो। मुझे अगर पता है कि भाई मेरा पब्लिक स्पीकिंग के लिए पैशन है और मुझे स्टेज पे जाना अच्छा लगता है, मैं वहां पे चला जाता था। एंड ऑल्सो इन ऑफलाइन क्लासेस यू गेट द अपॉर्चुनिटी, मतलब शायद मैंने क्लास में ही 3 या 4 प्रेजेंटेशंस दे दिए थे हमारे ऑफलाइन क्लासेस में। 3 या 4 प्रेजेंटेशंस गाजा इसराइल वॉर पे दे दिए थे, या फिर कुछ वो वर्जिन गैलेटिक का कुछ था, सो उस पे दे दिए थे। सो जहां पे मौका मिले जाओ, डोंट रेजिस्ट योर सेल्फ, बट आस्क योर सेल्फ, इज माई सीए नॉट गेटिंग हेम्पर्ड ना। फर्स्ट प्रायोरिटी वही है कि सीए हेम्पर नहीं हो रहा है ना, उसकी स्टडीज हेम्पर नहीं हो रही ना। आई वुड से दैट कि जो है पहले सीए, बाकी सब इफ यू गेट टाइम डू इट। अगर आप हर चीज टाइम मैनेजमेंट के साथ कर सकते हो तो कुछ भी करने में बुराई नहीं है। या प्रथम भैया, मैंने सुना, मतलब कई लोग मेरे से बोलते हैं, मतलब ऐसा जो सीनियर्स भी हैं वो भी बोलते हैं कि अगर आपको जॉब करनी है या कुछ करना है तो जिन आप जो आर्टिकलशिप में सीख रहे हो वो ऐसा ज्यादा कुछ काम आता नहीं है, मतलब आता है थोड़ा बहुत काम है लेकिन बेसिक नॉलेज में भी काम चल जाएगा। इस चीज के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आई वुड से द आर्टिकलशिप मेक्स यू रेडी फॉर द पीपल गेम। यू लर्न सो मच थिंग्स अबाउट पीपल, मतलब आप जब स्कूल में होते हो ना तब आपके 60 लोग आपके आसपास होते हैं। वेन यू एक्सपांड योर बेस, आप सीनियर से भी बात कर रहे हो, आप आपसे थोड़े ऊपर के लेवल से भी बात कर रहे हो, आप अपने जूनियर से भी बात कर रहे हो, आप अपने पीयर्स से भी बात कर रहे हो। सो दैट पीपल स्किल, मतलब जो नेटवर्क आप फॉर्म करते हो ना, जो बात करने का ढंग है, जो डील करने का ढंग है कि कोई आदमी अगर गुस्से वाला है तो उसके साथ कैसे डील करना है,
कोई आदमी अगर फ्रेंडली है तो उसके साथ कैसे डील करना है, कोई अगर आदमी ऐसा है कि भाई उसके साथ मजा आ रही है तो उसके साथ चिल कैसे मारना है। दैट एलिमेंट, दैट पीपल्स एलिमेंट यू लर्न इन द आर्टिकलशिप इज बेस्ट। शायद मैंने आर्टिकलशिप में उतना ज्यादा, मतलब ऐसा तुम जो बोल रहे हो कि बेसिक बेसिक नॉलेज वाला मैंने किया था, बट द पीपल आई हैव अर्न ना, दैट्स आई नो कि मैं एक फोन करूंगा ना वो लोग ऐसे रिस्पॉन्ड करेंगे ना, दैट वी हैव बीन फ्रेंड्स फ्रॉम वन लॉन्ग टाइम। सो जो वो पार्ट है, जो नेटवर्क, जो पीपल वाला पार्ट है ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी आई गेस। तो मैं यार जैसे कई लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जैसे मतलब आप बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मेरे को भी अपनी प्रैक्टिस करनी है, बट उनके माइंड में एक चीज आ जाती है कि मेरी आर्टिकल से वो उतनी अच्छी नहीं हुई, और मैंने उतना काम नहीं सीख पाया कि अपनी खुद की प्रैक्टिस फर्म खोल पाऊँ। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि आगे भी स्कोप है या नहीं है आपको प्रैक्टिसिंग फर्म, तब भी आप आगे बढ़ सकते हो? सो बेसिकली वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड, एंड बेसिकली इफ यू सी, अगर पार्टनरशिप में अगर कोई चार, तीन या चार जन मिल जाए ना, दो या तीन जन आपको मिल जाए ना, कि भाई हाँ यू यू आर नॉट ओवरलैपिंग ईच अदर स्किल्स, एंड जो स्किल्स है वो डाइवर्सिफाइड है, देन यू आर गुड टू गो। अगर इंडिविजुअल भी है, देखो मैंने एक चीज किसी से सुनी है कि कुर्सी है ना सब चीज सिखा देती है। एक बार कुर्सी पे बैठते हैं ना तो सब चीज आ ही जाती है ऑटोमेटिकली, यू जस्ट स्टार्ट लर्निंग एंड यू स्टार्ट ग्रोइंग। और इंटरनेट है, चैट जीपीटी है, यू कैन आस्क इट, हो जाता है। मतलब इट्स जस्ट दैट करेज पार्ट, कि भाई करेज करना है कि नहीं करना, वो एक आ जाता है। दैट्स व्हाट आई बेसिकली आस्क, कि भाई करेज हो तो जस्ट डू इट, कि भाई ठीक है, हो जाएगा कुछ ना कुछ। पता है, जैसे अभी आपने बोला करेज होना चाहिए, देन आपके पास, आपका सीए एग्जाम क्लियर हुआ, आपके पास मिनिमम टू मिनिमम 10 to 12 लाख की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी सीए प्रैक्टिस से स्टार्ट करने से पहले। कहीं आपके फैमिली मेंबर्स ने, रिलेटिव्स ने कभी सजेस्ट नहीं किया कि अभी 2-3 साल जॉब कर ले, थोड़ा एक स्टेबिलिटी आ जाएगी, उसके बाद कर लेना ये सब चीजें ट्राई? इस पे इन आप क्या दिस कहना चाहोगे? इन दिस माय फादर वाज वेरी एडamant. He had worked all his life in job. So he said to me कि 2-3 साल बाद भी अगर शुरू करना है तो जीरो से ही स्टार्ट करना है, तभी भी स्टार्ट तो जीरो से ही करना है। एंड देन देयर वुड बी अ कॉस्ट, यू नो, वाइफ आ जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, यू नेवर नो क्या हो, क्या 2-3 साल बाद क्या होगा। सो तभी भी जीरो से ही स्टार्ट करना है, एंड अभी भी जीरो से ही स्टार्ट करना है। सो स्टार्ट नाउ, क्या फर्क पड़ने वाला है। 10-12 लाख, आई नो इट्स अ वेरी हाई कॉस्ट के 10-12 लाख, बहुत लगता है कि यार स्टार्टिंग में मेरे दोस्त बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, दिस एंड दैट। बट इफ यू सी द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, कि अगर प्रैक्टिस 3 या 4 साल एक स्टेबिलिटी के साथ ग्रो करी ना, देन इट वुड ओवर पावर द जॉब सेक्टर। कि भाई जॉब सेक्टर में कितना ग्रो हो जाएगा, 10%, 12%, इफ वी टेक द मैक्सिमम ग्रोथ रेट के 10%, 12% जो होगा। बट इफ वी एक्सपांड द प्रैक्टिस एंड इफ वी गो इन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट, तो वो लॉन्ग रन में इट वॉज अ बेटर डिसीजन, दैट आई थॉट दैट प्रैक्टिस वुड बी अ बेटर डिसीजन इन द लॉन्ग रन, के लॉन्ग रन में वो ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा, बाकी कुछ नहीं था। आई वोंट से कि जॉब बैड है, बट दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग, कि भाई लॉन्ग रन में मुझे क्या खेलना है। और लॉन्ग रन में इट वाज लाइक कि भाई गुजराती है तो भाई धंधा तो करना है। सो आई वाज लाइक चलो कोई नहीं। गुजरात की हवा में भी एमबीए, मतलब हर किसी की चीज मुंह पर एक ही चीज रहती है, धंधा। तो भैया एक चीज और थी, जैसे कई लोग जो प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हैं उनके मन में एक डाउट और आता है कि चलो हम प्रैक्टिस स्टार्ट कर लेंगे, 2-3 साल का टाइम खुद को दे भी सकते हैं, और ठीक है मतलब स्टेबिलिटी भी है थोड़ा बहुत कि घर से अभी स्टार्टिंग में तो प्रेशर नहीं होगा। बट फिर उनके मन में एक चीज आती है कि हम क्लाइंट्स कहाँ से आएंगे, हमारे उतने कनेक्शंस नहीं है। हम प्रैक्टिसिंग फर्म खोलेंगे तो प्रोफेशनल एथिक्स में आता है कि आप प्रमोशन वगैरह भी नहीं कर सकते हो अपनी फर्म का। या देन कैसे स्टार्टिंग में लोगों को पता चलेगा कि हमारी फर्म है, हमारे पास क्लाइंट्स कहाँ से आएंगे, और कितना टाइम एक हमें मतलब नॉर्मल अर्न करने में लगेगा? बेसिकली आई वुड से, इन दिस ऑनलाइन डिजिटल प्रेजेंस, राइट आर्टिकल्स। मैं क्या करता हूँ लिंक्डइन पे हर रोज सुबह उठ के आई राइट एनीथिंग जो मुझे पसंद हो, कि जो भी प्रोफेशनल कलीग्स को ऐसा लगे कि हाँ भाई दिस वुड बी अ गुड, दिस वुड, यू नो, ये ऐसा नहीं होगा कि भाई हाँ क्लाइंट्स दे देंगे एक महीने में आ जाएंगे, बट ओवर द टाइम इट विल बिल्ड अ, यू नो, रेपुटेशन बिल्ड हो जाएगी कि भाई दिस पर्सन इज डूइंग दिस टाइप ऑफ थिंग्स। अगर कुछ भी काम आएगा, दे वुड कंसल्ट यू, दे वुड टॉक टू यू। बाकी कुछ ना कुछ नया काम, नया नया नया, यू नो, बिजनेस होता ही रहता है। सो दे, यू नो, योर फ्रेंड्स ग्रुप, योर फैमिली, इफ यू से दैट यू आर ओपनिंग अ प्रैक्टिस, दे वुड समवेयर एंड समथिंग वुड गिव यू द वर्क। हमारे में भी वही हो रहा है। सो basically we had open, but the majority of work is coming from friends and families only. We are not going and selling anything, but I make sure that I am present on LinkedIn. I write things, I am quoting on LinkedIn that what are we doing,
डायरेक्ट एक्सेस के केस लॉज एक्सप्लेन करता हूँ. सो मेक योर ऑनलाइन प्रेजेंस अ थिंग कि हाँ, दिस पर्सन इज डूइंग समथिंग, एटलीस्ट इफ वी कैन प्रोवाइड दैट ऑल्सो. और ये मैंने शिवम पालन सर के एक उनका भी कोई वीडियो था, इट वाज अबाउट हाउ टू डू योर प्रैक्टिस. सो उनमें भी एक सर आए थे, उन्होंने भी वही बोला था दैट डू एनीथिंग. लिंक्डइन पे आप जाके कुछ भी लिखना शुरू करो ऑफ योर टॉपिक, ऑफ योर निश, और वहां से थोड़ा ना थोड़ा आपका रेपो बिल्ड हो जाएगा एंड यू विल गेट एनीथिंग समवेयर इन समथिंग फ्रॉम दैट रिटर्न. मतलब भैया इसी से रिलेटेड एक चीज और दिमाग में आई कि सोशल मीडिया प्रेजेंस आज के टाइम में कितना जरूरी है। कई लोग बिल्कुल ही इस चीज को नेग्लेक्ट कर देते हैं कि ये सब चीजें बेकार चीजें हैं, इन सब चीजों पर ध्यान मत दो, अपने काम पे ध्यान दो। बट आज के टाइम में काम भी यहीं से आ रहा है। तो कितना जरूरी है कि हाँ थोड़ा एक लाइन मेंटेन करो कि इससे क्रॉस हमें नहीं करनी है, इतना ज्यादा टाइम अलॉट नहीं करना है। बट फिर भी प्रेजेंस कितना जरूरी है आज के टाइम में सोशल मीडिया में, जहाँ पूरा यूथ सोशल मीडिया पे है। यू नो, रेदर देन कंज्यूमिंग कंटेंट, क्रिएट कंटेंट. आई वुड से दैट कंटेंट कंज्यूम करना ही है. कंटेंट है ही, देखो आजू बाजू कंटेंट होने ही वाला है. सो रेदर देन कंज्यूमिंग इट, रेदर मेक इट. आप भी बना रहे हो, आपकी भी एक, वी कनेक्टेड बिकॉज आई लिंक्ड विथ योर कंटेंट. कि हाँ, ही इज creating a content that is more relevant to the CA stuff. And that's how you build your persona, you build your identity over for all students. कि भाई है ही सब, देखो शायद इंडिया में अभी 10 लाख स्टूडेंट्स होंगे. 10 लाख में कौन आगे आ रहा है, दैट विल बी शोन बाय सोशल मीडिया. कि हाँ भाई कौन कहाँ पे. इट्स नॉट अबाउट कि भाई मुझे शोशा करना है, बट इट्स अबाउट योर आइडेंटिटी कि भाई आप क्या कर रहे हो. क्रिएट क्रिएट द कंटेंट जो भी पसंद हो. इट्स नॉट अबाउट कि हाँ भाई मैं क्या व्लॉग्स ही बनाओ या फिर यही पर्टिकुलर चीज जो पसंद हो. इट्स ऑल अबाउट योर आइडेंटिटी. आप जो हो वो बनाओ ना, क्या दिक्कत है, rather देन कंज्यूमिंग इट. आज के टाइम में तो भैया शायद आपको नहीं पता होगा, आईसीआई भी इस चीज को रिकॉग्नाइज करने लगी है। अभी रिसेंट की बात है, 27 या 28 मार्च की। सबके पास एक मेल गया था कि वी आर प्लानिंग टू डू अ सीए स्टूडेंट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मीट। आईसीआई बीओएस की तरफ से मेल आया था कि आप अपनी प्रेजेंस दिखाओ अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो, और हम उस चीज को अप्रिशिएट करेंगे। तो ये बात नहीं है कि आप सीए में हो तो कुछ नहीं कर सकते, खुद आईसीआई बीओएस इस चीजों को प्रमोट कर रहा है। फिर कुछ बुरा नहीं है अगर हर चीज लिमिट में हो तो। एवरीथिंग विच इज इन लिमिट इज गुड. कि हाँ, एक लिमिट में है तब ज्यादा अच्छा है. बट जब वो लिमिट क्रॉस होता है तब वहां पे प्रॉब्लम शुरू होना स्टार्ट हो जाती है कि भाई नाउ व्हाट. मतलब आज आप सीए बन गए हो, एक सीए बनने से पहले की लाइफ और सीए बनने की लाइफ, कुछ मेजर डिफरेंस जो आप बताना चाहो सबको। जो मेजर डिफरेंस है ना, वो आपको तो पता नहीं चलेगा. आपको लगेगा भाई मैं पहले भी वही था, आज भी वही हूँ, आज भी वो निठल्ला हूँ, आज भी वही, कल भी वही था, आज भी वही हूँ. सो हाँ, बेसिकली व्हाट पीपल परस्यू टुवर्ड्स यू जस्ट चेंजेस ड्रास्टिकली. जो जो लोग आपको ध्यान भी नहीं देते थे, जो लोग आपको आपकी बात कभी सुनना भी नहीं चाहते थे, नाउ दे लिसन टू योर वर्ड्स कि आप क्या बोल रहे हो. भले कुछ रेलेवेंस है कुछ नहीं है, आप अगर क्रिकेट की भी बात करोगे ना वो सुनेंगे. आप अगर कुछ चीज जो एकदम मूवीज की भी बात करोगे ना वो लोग सुनेंगे कि भाई इसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज के बारे में. सो पीपल स्टार्ट कंसिडरिंग, कन्विंसिंग दैट ही इज अ नॉलेजेबल पर्सन. ही विल टॉक सेंस, ही विल नॉट टॉक एनीथिंग एंड नॉनसेंस. सो ही विल बी टॉकिंग सेंस एंड अ लॉजिकल थिंग. सो जो पीपल का परसिवरेंस होता है ना अपने तरफ, वो एकदम चेंज हो जाता है. दैट पीपल स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग यू कि हाँ भाई, ही इज अ पर्सन हु इज ऑफ इंटीग्रिटी एंड ही इज ऑफ पर्सन हु इज ऑफ नॉलेज. सो दैट्स व्हाट I faced the major change. मतलब यार ऐसी कोई स्किल जो सीए बनने के बाद, अब आप सीए बन चुके हो, कि लगता हो कि इस चीज पे ध्यान देना चाहिए, तो आप सीए में आप जॉब करने जा रहे हो, प्रैक्टिस करने जा रहे हो, तो ये चीज आपको काफी हेल्प करेगी। It's, you know, I believe more of emotional connect with the people. क्योंकि अभी है ना पूरा जो भी है एआई के बारे में सब आगे बढ़ने वाला है. नॉट नाउ बट डाउन द 2 or 3 years सब एआई पे चला जाएगा. एंड इन द वर्ल्ड वेर देर आर ओनली कंप्यूटर्स, द पीपल हु थ्राइव ऑन इमोशंस विल सर्वाइव. सो जो इमोशनल पार्ट है, इमोशनल बॉन्डिंग है, इमोशनली कनेक्ट करना है, इमोशनली बात करना है. सो व्हेन यू डेवलप दैट स्किल, दैट्स द ओनली स्किल दैट विल बी रेलेवेंट इन फ्यूचर. उसके अलावा आई गेस कोई इतनी ज्यादा रेलेवेंट स्किल रहेगी नहीं, द इमोशनल पार्ट. सो आई वुड से दैट स्टार्ट डेवलपिंग द इमोशनल पार्ट. डोंट बी इंट्रोवर्टेड, डोंट बी लाइक कि हाँ भाई मैं पढ़ाई कर लूंगा, मैं बुक्स में रहूंगा, मैं टॉप कर लूंगा, एआई आ जाएगा. नो, यू हैव टू डेवलप दैट इमोशनल कनेक्ट, इमोशनल स्किल्स. और वो ही फ्यूचर में जाके वही रेलेवेंट होने वाला है. यू कांट से हाँ भाई मैंने ये पढ़ लिया, क्योंकि आज जो पढ़ा वो 2 साल में, 2 साल के बाद भी रेलेवेंट नहीं रहने वाला. सो व्हाट व्हाट विल रेलेवेंट बी
कॉन्स्टेंट चेंजिंग एनवायरनमेंट में आप कैसे पढ़ रहे हो, जो भी नई नई चीजें आ रही है, एंड द वे यू आर कनेक्टिंग विद इमोशंस विद द पीपल। एट लास्ट प्रथम भैया, इस पूरी जर्नी में आपने सीए स्टार्ट किया, सीए बने, कई सारे अप्स एंड डाउन्स आए होंगे, कभी लगता होगा नहीं पढ़ना मेरे को, कभी लगता होगा कि मतलब आप इससे फेलियर के टाइम पे भी, उस डाउन्स के टाइम पे भी आप कंसिस्टेंट रहे होगे। तो इस पूरी जर्नी की कुछ लर्निंग्स या एक या दो लर्निंग जो आप बताना चाहो कि बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, ये आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, तो ये चीज आपको माइंड में रखनी है अगर आपको ग्रो करना है तो। So the one quote that I believe is very hard and core infitted in me, it's today is yesterday's tomorrow. आज गई काल नहीं આવતી કાલ છે. सो दैट्स अ गुजराती प्रोवर्ब दैट टुडे इज यस्टरडेज टुमारो. सो हम बोलते रहते हैं कल करेंगे, तो वो आज ही है. आपने कल भी वही बोला था, क्या कल कर लेंगे, और वो आज वही है, कल वही है, जो है वो आज ही है. सो आई बिलीव कि जो करना है वो आज करना है, और कंसिस्टेंटली करते रहना है. इफ यू यू नो मैंने अपना पूरा जो सीए फाइनल की पूरी जर्नी है ना, आई हैड रिकॉर्डेड ईच एंड एवरी डे कि मैंने कितना पढ़ा है. सो आई हैड दैट इन माइन्यूट डिटेल्स. शायद मेरे मार्क्स उतने ज्यादा नहीं है, बट द प्रिपरेशन स्टेज आई हैड डन, आई हैड सीन कि मैं रैंकर ही हूँ. आई वांटेड टू गेट AR1. तो जो वो प्रिपरेशन माइंडसेट है ना, अगर रैंक ही सोचोगे नहीं तो पास नहीं हो पाओगे. इट्स दैट बेसिक थिंग कि रैंक नहीं सोचोगे तो पास होने में भी थोड़े ऐसे ऊपर नीचे होने ही वाले हैं. एंड मैं भी इतना ऐसा ज्ञान दे रहा हूँ, बट दैट्स व्हाट आई से कि भाई मैंने भी रैंक की ही प्रिपरेशन की थी, तब जाके मैं 303 पे अटका हूँ. एंड जो वो हार्डवर्क था वो कभी नहीं जाने वाला, एंड इट विल स्टे विथ यू. सो बेसिकली दैट व्हाट आई से दैट टुडे इज यस्टरडेज टुमारो. एंड मेंटल गेम इज द मेजर गेम. फिजिकल पेन आप एंड्योर कर लोगे, बट जितना मेंटल सेनिटी और इतनी सिंप्लिसिटी, द थर्ड थिंग इज कीप द थिंग सिंपल. कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज है ना, ऐसा लगे कि भाई इसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, जस्ट थिंक कि इसका सिंपल आंसर क्या होगा, एंड वही राइट आंसर होगा. सो जो सिंप्लिसिटी में जो मैजिक है ना, वो कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं है. सो कीप द थिंग सिंपल, कि जो है वो सिंपल है, एंड इट इज वेरी नेचुरल वे, और वही है. तो विक्रम भैया, थैंक यू सो मच मेरे साथ पॉडकास्ट पर जोड़ने के लिए। और बाकी कैसा लगा आपको मेरे साथ पॉडकास्ट पे आके? द क्वेश्चंस यू आस्क्ड, इट वाज लाइक आई हैड आल्सो टू थिंक दैट क्या आंसर दूं इसका, सोच समझ के. एंड द क्वेश्चंस यू फ्रेम्ड वाज वेरी नाइस, एंड इट वाज वेरी नाइस कनेक्टिंग टू यू बैक अगेन, एंड हैविंग दिस अमेजिंग कॉन्वर्सेशन. शायद मैं नहीं, मेरे फेलो कलीग्स नहीं, बट शायद अगर आगे की एक जनरेशन या फिर एक अटेम्प्ट वाले भी अगर इसको सुन ले, और इफ दे जो भी उन लोगों को लगे कि भाई ये अच्छा है, देन इट्स वेरी 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 गुड, बिकॉज आई बिलीव एजुकेशन इज द बेस्ट वे ऑफ यू नो सर्विस टू द सोसाइटी. कि भाई अगर किसी को एजुकेशन दे दिया तो उसकी पूरी लाइफ बदल जाती है, एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव इन. मैंने कहीं पर सुना भी था कि अगर आपकी वजह से कोई एक भी चेंज हो रहा है तो आपकी लाइफ सक्सेसफुल हो चुकी है। या, सो बेसिकली इट्स दैट थैंक यू चेंज सो दैट आई मच। एम थ्राइविंग ऑन. थैंक यू. Thank you for थैंक inviting यू me सो and मच। to this amazing podcast. And you also grow in the YouTube sector and also in the CA, because CA यश परियार लगाना है, because that's the major goal आर्या। and that's the ultimate goal. And yeah, बहुत जल्दी मैं भी प्रैक्टिस में आने वाला हूँ अपनी कम्युनिटी को लेकर। अरे that's the best thing. अपने फ्रेंड्स के साथ, मतलब हमारी तो एक स्टोरी है दैट फ्रॉम बेंचमेट्स टू द पार्टनर्स, मतलब हम लोग सेम बेंच पे बैठते थे, एंड आज हम लोग सेम पार्टनर्स, हम सेम ऐसे डेस्क पे बैठते हैं. सो दैट्स हाउ द थिंग्स हैव चेंज. मतलब वो हो जाता है, नेचुरली हो जाता है, जो होना होता है वो नेचुरली हो ही जाता है. और प्रथम भैया, एंड करने से पहले एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में क्लिक हुआ। आपने बोला फ्रॉम बेंचमेट्स टू पार्टनर्स। कई बच्चे दोस्ती को पढ़ाई मतलब ऐसे डिस्ट्रैक्शन समझ लेते हैं यार, कि दोस्ती दोस्ती के लिए टाइम बाद में निकाल लेंगे, ये सब चीजें बेकार चीजें हैं अभी। कई सोचते हैं, मतलब कई लोगों के अभी माइंड में रहता है कि दोस्ती जरूरी है, बट मैक्सिमम आज के टाइम में बच्चे ऐसे हो गए हैं कि दोस्ती बाद में पहले पढ़ाई। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हो कि दोस्ती भी कितनी जरूरी है साथ? फ्रेंडशिप इज द ultimate thing that will make you successful in the life. मतलब it is said that you are the average of 5 people you are spending time with, और वो 5 पीपल आपको चूज करना है. यू कैन चूज एनीवन. सो वो 5 पीपल चूज करने की जो एबिलिटी हमको दी है, सो व्हाई नॉट चूज द बेस्ट वन. एंड वो अच्छे, क्योंकि दिस आर द पीपल विथ होम आई हैड वेंट टू ट्रैक्स. मतलब हम ट्रैकिंग पे भी साथ में जाते थे. अगर कोई ट्यूशन में क्रिकेट की टूर्नामेंट हो रही है, तो हम वी आर द टीम, हम लोग जीत रहे हैं. सो कुछ भी हो, वी आर देयर. मतलब जो वो एक
ग्रुप हो जाता है ना, एंड दैट मेक्स योर जर्नी वेरी स्मूथफुल, मतलब आराम से निकल जाती है। कभी कभी डिप्रेशन होता है तो फोन कर लेते हैं कि भाई क्या हाल चाल है, क्या कर रहे हो। रात को बैठ जाते हैं, रात को खाने चले जाते हैं, रात को घूमने चले जाते हैं। तो दैट एसेंस, मतलब जो वो है ना, इट जस्ट चेंजेस एवरीथिंग। मतलब वो अगर मैं सीए बना हूं तो मैं मेरे दोस्तों की वजह से बना हूं, अगर मैं बोलूँ तो। अगर वो नहीं होता तो मैं नहीं बन पाता। एंड दैट्स द एसेंस ऑफ फ्रेंडशिप दैट आई से इज देयर। थैंक यू सो मच प्रीतम भैया, हमारे साथ में जुड़ने के लिए। बहुत ही ज़्यादा लर्निंग्स हमने ली, और बाकी सबने भी बहुत कुछ इससे सीखा होगा, और मैं चाहता हूँ सब लोगों ने जो भी कुछ सीखा अपनी लाइफ में अप्लाई करें और काफ़ी आगे बढ़े। थैंक यू सो मच। थैंक यू यश।